India Today has now accessed a longer and a clearer video of the Lakhimpur incident. This 45-second video shows an SUV clearly arriving at a high speed, mowing down protesters walking ahead peacefully. It's been now 4 days since the deadly violence, but no arrests have been made so far. In fact, Ashish Mishra, the main accused in this case, seems to be nowhere found. Let's take a listen at this report. A group of protesters walking in a narrow stretch. A Thar SUV comes from behind at breakneck speed. Before anyone realizes what's happening, the SUV plows through the pedestrians, trampling some and dragging many, hurling others on the wayside, leaving behind stunned and dazed onlookers who are too shocked to even react. In a split second, another SUV zooms past. It's then that some onlookers finally gather their wits, starting to shout at the SUVs and running behind them in incredulous shock. The 45-second video stops right there, but not before narrating the sheer terror that gripped the area, catching the Lakhimpur tragedy in all its glory details. This is the longer and clearer video version of the Lakhimpur incident accessed by India Today, raising even more disturbing questions than answers. Bureau Report, India Today. Well, let me cut across to our panelists joining us to give us their perspectives. Chaudhry Savit Malik, who's the president of the Kisan Union. We also have Dr. Kaushal Mishra, spokesperson of the BJP, and Supriya Srinath, spokesperson of the Congress, joining us. Let me start here with our Kisan Union president, Chaudhry Savit Malik. Mr. Chaudhry, here is a situation where you have 8 people who've died in the Lakhimpur violence. Finally, after much protest, it appears that you all have come to some kind of truce with the Yogi government. After the Yogi government they've agreed to give compensation of 45 lakhs to the family of the deceased. After much of that settlement, now we see the situation only escalating. क्या हुआ है और आपको क्या चाहिए अब? देखो, जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूरा देश इसको देख रहा है। ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ है। पहले अंग्रेजों के जमाने में जरूर ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो सबसे पहले तो हम इस पर दुख जताना चाहते हैं और सबको पता है कि बहुत गलत घटना है। हमारी जो आशाएं थी, जो सरकार से बात हुई थी, सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है और इसी का नतीजा हमको लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। 4 दिन होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज 2 गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ के लिए भी कुछ नहीं कहा गया था। आज माननीय गृह मंत्री जी के बेटे के नोटिस भेजा गया है, लेकिन 4 दिन से पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और जवाब मांगा, तब इन्होंने कहा है। हमने इनसे समझौते में ये नहीं कहा था कि आप उसकी गिरफ्तारी ना करना, हमने ये नहीं कहा था कि आप दोषियों को ना पकड़ना, हमने ये नहीं कहा था कि आप वहां से सारे सबूत मिटा देना। आप देखेंगे वो जो स्पॉट है जहां पर घटना हुई है, उसको कवर नहीं किया गया है। कहीं भी कोई घटना होती है, पुलिस जाती है, उसको कवर कर देती है और किसी को वहां जाने नहीं देती। लेकिन इस घटना में इन्होंने उस जगह को खुला छोड़ दिया है। वहां पर तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि सारे सबूत वहां से हटाए जा सकते हैं। तो ये very sensitive zone, a highly sensitive zone, which has been opened up for people to move about. In fact, initially they opposed for the opposition to head towards that area of the violence, but eventually they also were allowed. Dr. Kaushal Mishra, your government in Uttar Pradesh, it's been 4 days on, have not been able to make one arrest. The main man who's accused of murder, Section 302 that's been slapped on him, Ashish Mishra, who's a Minister of State for Home, his son is nowhere to be seen, and the UP police did not think it was important enough to track him down, check his call records, find where exactly he is, and now finally they stick a summons notice in front of the Union Minister's house after the Supreme Court stepped in. देखिए, जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है और जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है, इस घटना को करने वाले को कोई इनोसेंट नहीं कह सकता, कोई उसका बचाव नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात जब सरकार के एक्शन की बात आती है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए, बिना किसी दबाव में एफआईआर रजिस्टर की गई,
एफआईआर रजिस्टर करने के साथ साथ जो आप ये डिले का जो लग रहा है, मैं पुलिस का पक्ष नहीं रख सकता, एडमिनिस्ट्रेशन का पक्ष नहीं रख सकता, लेकिन ये जो डिले हुआ है जो मुझे समझ में आता वो शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि पिछले 4 दिनों से तो आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ उस स्पॉट पे जाने की कोशिश कर रही हैं, वहां की फैमिली से मिलने की कोशिश करनी। कोई किसी की डेथ होती है तो उसमें फैमिली से जाके मिलना एक नॉर्मल ट्रेंड है और होना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसके बिहाफ पे पॉलिटिक्स हो रही है, समस्या वहां पे है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन डिले हुआ। आप सोचिए कि अगर ये सब पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं चल रहा होता तो शायद ये जो सम्मन भेजा गया है या जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता, जो डिले हुआ 3-4 दिन, ये पहले हो गया होता। सिर्फ ये अगर कोई मामूली इंसान होता डॉक्टर कौशल जी, कोई मामूली इंसान होता अगर, तो अभी तक अरेस्ट हो चुका होता। तो इतनी देरी क्यों? क्या कोई अलग कानून है जो एमओएस होम के बेटे को अरेस्ट ना किया जाए? कोई अलग रूल्स है ऐसे जो हाई प्रोफाइल अरेस्ट ना किया जाए? क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, कोई पुलिस क्या डर रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए? आप देखिए उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी पहले, उसके कंपैरिजन में पहले तो ये समझिए कि हुआ क्या हुआ। ये कि आपने जैसा कि बताया कि स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो गई। ये उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी वहां आपको भी पता और पूरी पब्लिक को पता, पूरे कौशल जी आप बीते हुए बात को मत छेड़िए, आप ये केस के बारे में बात कीजिए। आशीष मिश्रा को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक क्यों नहीं किए गए? अभी कहाँ है वो? कोई अता पता है? ये सवाल और सबसे बड़ी सवाल जो पूछ रहे हैं, जो किसान लोग भी पूछ रहे हैं, क्या अजय मिश्रा टेनी को अभी तक पर रहना चाहिए? क्या वो रिजाइन करना चाहिए उनको मॉरल ग्राउंड्स पे? देखिए अभी जो पुलिस की किस कार्रवाई है उसके बारे में कुछ बयान नहीं दे सकता। उन्होंने क्यों नहीं पूछताछ की, उन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट किया, ये प्रोसीजरल मामला है जो रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है। तो ये इसका जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूं और मैं दे भी नहीं सकता पार्टी के बिहाफ पे। लेकिन हाँ, अगर जैसा कि मंत्री जी ने खुद कहा है कि अगर उनके बेटे का एक भी फुटेज, एक भी पिक्चर, एक भी वीडियो, जो डिफरेंट क्लिप्स आ रही हैं, सैकड़ों क्लिप हैं इस समय सोशल मीडिया पे, पर किसी क्लिप में उनका बेटा नजर नहीं आ रहा है। जो वीडियोस है वो क्लियरली बता रहे हैं कि एक एसयूवी ने जो किसान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया। पद से रिजाइन कर देंगे। Absolutely incriminating videos that we have in possession, which we've been playing for you for the last few days, and it's still shocking that the UP police have not made an arrest. Only 2 detentions, but no arrest so far. Supriya Srinath, here is the opposition, of course, the BJP in UP saying that the opposition jumping in only for some visibility, while the UP police is trying to investigate. They're trying to keep this zone sanitized, and since it's a highly sensitive area, you have the Congress now. Even today, Navjot Singh Sidhu was attempting at reaching the area days after the incident. What is the reason to kick up such a ruckus when investigations underway? Your take on that? I will opt to speak in Hindi because the rest of the panel spoke in Hindi. Sure. I think ये सही है कि मैं हिंदी में बात करूं क्योंकि मेरे 2 पैनलिस्ट ने हिंदी में बात करी और मुझे लगता है कि मुझे हिंदी में ही जवाब देना चाहिए. If you want, I can repeat some parts of my answer in English. जो सबसे पहली आपने बात कही, मैं उसमें 2 बातें और ऐड करना चाहती हूं. अगर आप FIR देखिए तो नंबर 1 पर एक ही नामजद अभियुक्त है, आशीष मिश्रा, सन ऑफ अजय मिश्र टेनी, जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत की केंद्र सरकार, मोदी सरकार में. दूसरा, 15 से 20 अज्ञात लोग उसमें नामजद और कोई नहीं है इनके अलावा. गिरफ्तारी और डिटेंशन 2 अन्य लोगों का होता है. इनको सिर्फ कल पूछताछ के लिए अभी तक बुलाया गया है. चौथे दिन एक चस्पा लगाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. क्या आशीष मिश्रा दिल्ली में है या लखीमपुर खीरी में है, यह प्रशासन बता पाएगा. क्या वो फरार हो चुके हैं, क्या इनको पता भी है वो कहां है, ये पहला सवाल है. दूसरा सवाल आप मुझे ये बताइए कि जिसका पिता गृह राज्य मंत्री भारत सरकार में हो, जिसको पुलिस रिपोर्ट करती है, उनके अपने पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव है. मेरा कातिल ही मेरा मुंसफ है. ये कौन सी बातें हो रही हैं इस देश में. तीसरा, जो आपने सवाल पूछा कि क्या सिद्धू जी आए और बाकी चुने हुए मुख्यमंत्री आए, मैं इतिहास के पन्ने थोड़े से ही पलट देती हूं. 26/11 जब हुआ था मुंबई में,
जब रेस्क्यू चल ही रहा था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मुझे तो नहीं लगता वो अच्छी राजनीति कर रहे थे, मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। नवंबर 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो पटना में एक बम विस्फोट हुआ था, नालंदा जाकर वहां पे जो दिक्कत में लोग थे, जिनको जो इफेक्टेड फैमिलीज थी, उन्होंने 5-5 लाख रुपए बांटे थे। मुझे लगता है वो कर्तव्य निभा रहे थे। ये देश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बटा हुआ नहीं है, ये देश हम सबका है और हम जहां चाहें जाएं जा सकते हैं। आपने प्रियंका गांधी को 60 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा, किस चार्ज पे रखा? मैं इस पर बहस ही नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि मेरे नेता का कहना है कि मुद्दा किसान है। आज आप देखिए क्या हुआ, आज अंबाला में, नारायणगढ़ में एक और गाड़ी चढ़ा दी गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि कुचला नहीं जा रहा है किसान आंदोलन, तो किसानों को कुचलने लगो। अरे आप मिसाल बनाइए, गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के जो आरोपी हैं जगत नारायण सिंह, उनको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये क्या कर रही है पुलिस उत्तर प्रदेश? और मोदी जी और शाह जी क्या कर रहे हैं? एक मिनट नबीला, we barely have 1 minute left. A quick question to you. Let me finish in 5 seconds. मोदी जी और शाह जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं वो अजय मिश्रा टेनी को? ये सवाल उठेगा। All right. So here you have questions being raised by the Yogi government. When they've really come to a truce with the farmers, they've sort of managed to give compensation. Investigation is underway. Supreme Court is hearing the matter. Then what's the reason for a parade to take place by Navjot Singh Sidhu and a host of Congress leaders? Not satisfied. Was Mr. Yogi Modi taking out a parade? That's what I want to know when he was going around the country as the chief minister, first in 2611, then in Bihar. This country belongs to us all. To even say this is a parade is a wrong thing to say in a democracy. That's what I would emphatically want to emphasize upon. And I think the Prime Minister and the Home Minister is complicit if Ajay Mishra... All right. Ms. Supriya, we barely have any time, but the bottom line here is, why hasn't anyone been arrested in this case so far? 4 days on, and it appears only 2 of them detained. Ajay Mishra's son, Ashish Mishra, seems to be still absconding. There's no information of his whereabouts, while you have the Supreme Court taking up this case tomorrow, has asked the UP police to give a detailed report on the investigation so far. We're going to continue tracking those developments. For now, thank you for watching.